First, I'm Akanksha Sharma, and today I'm here with the explanation of a poem When I Heard the Learned Astronomer. It is written by Walt Whitman. Before we start with the explanation of the poem, let us first study about the poet. Walt Whitman was an American poet, essayist, and journalist. He is considered one of the most influential poets in American literature. Whitman incorporated realism in his writings and is often called the father of free verse. Whitman was born in Huntington on Long Island and lived in Brooklyn as a child and through much of his career. सो वॉल्ट विटमैन एक अमेरिकन पोएट थे, वो ऐसे लिखते थे और वो एक जर्नलिस्ट भी थे, मीन्स वो पत्रकारिता भी करते थे. उनको बहुत इन्फ्लुएंशियल पोएट्स माना जाता है अमेरिकन लिटरेचर में. इनफैक्ट इनका कुछ काम तो काफ़ी कॉन्ट्रोवर्शियल भी रहा है. Whitman incorporated realism in his writings and is often called the father of free verse. अब ये free verse क्या होता है? Free verse is a type of open poetry. It's an open form of poetry जिसमें पोएट बाउंड नहीं होता एक सेट म्यूजिकल पैटर्न को यूज़ करने के लिए या फिर एक सेट रिदम को यूज़ करने के लिए. जैसे राइमिंग स्कीम होती है तो इसमें कोई बाउंडेशन नहीं होता कि पोएट एक राइमिंग स्कीम को यूज़ करे. तो फ्री वर्स विदाउट एनी बाउंडेशन में पोएम लिखने को ही फ्री वर्स कहते हैं. ही वॉज बोर्न इन हंटिंगटन ऑन लॉन्ग आइलैंड. लॉन्ग आइलैंड पे इनका बर्थ हुआ था और ये ब्रुकलिन में रहे थे एज अ चाइल्ड और इन्होंने अपने करियर का काफ़ी समय भी ब्रुकलिन में ही स्पेंड करा. नाउ लेट अस रीड द पोएम. When I heard the learned astronomer, when the proofs, the figures were arranged in columns before me, when I was shown the charts and diagrams to add, divide, and measure them, when I sitting heard the astronomer, when he lectured with much applause in the lecture room, how soon unaccountable I became tired and sick, till rising and gliding out, I wandered off by myself, in the mystical moist night air, and from time to time, looked up in perfect silence at the stars. So this was the poem of 8 lines maximum. Now let us understand it line-wise. When I heard the learned astronomer, it is the first line. Here the poet tells the readers of his poem that once he got a chance to attend the lecture of an astronomer. Astronomer is a person who does calculations of space. So he attended a lecture of an astronomer. He was a very famous astronomer. He was a learned man. He showed all the proofs, the figures in the columns before me. When the astronomer was taking his lecture, he was delivering his lecture, he showed big charts, diagrams. There were proofs that how we can reach to stars or to other galaxies, whatever proofs he had given. So they were all arranged in columns before me. All the proofs, the figures, the diagrams, the mathematical figures, they were all made in columns in front of his eyes. When I was shown the charts and diagrams to add, divide and measure them, और फिर उसके बाद उसको चार्ट्स दिखाए गए, डायग्राम्स दिखाए गए, एडिशन, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, सब कुछ मेजरमेंट किया गया. लाइक स्पेस में जाने से पहले हम लोग बहुत सारी कैलकुलेशंस करते हैं. जो हमारे ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो स्पेस में लोगों को भेजते हैं या अपनी सैटेलाइट्स भेजते हैं, वो बहुत सारी कैलकुलेशंस करते हैं बिफोर परफॉर्मिंग एनी सच एक्शन. तो ये जो एस्ट्रोनॉमर थे इन्होंने भी अपने चार्ट्स दिखाए, डायग्राम्स दिखाए, फिगर्स दिखाई, प्रूफ्स दिखाए कि हाउ कैन वी सेंड अ पर्टिकुलर थिंग इनटू स्पेस. इन्होंने अपने मैथमेटिकल एडिशन, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, whatever he had to do to come up to that conclusion, he showed everything. When I sitting heard the astronomer, when he lectured with much applause in the lecture room. Now what the poet noticed, that he was sitting in that lecture room and he heard that other people, they were enjoying his lecture. They were applauding him. मीन्स वो उसकी तारीफ़ कर रहे थे, बाकी लोग उसके लेक्चर को बहुत इन्जॉय कर रहे थे और एस्ट्रोनॉमर की बहुत ज़्यादा तारीफ़ कर रहे थे दैट ही इज़ सच अ लर्नड मैन एंड ही हैड डन ऑल द कैलकुलेशन सो ईजिली. और उसने इतने सारे डायग्राम्स बनाए हैं, इतनी सारी इमेजेस बनाई हैं, फिगर्स बनाई हैं जिनसे हम आसानी से किसी भी कॉन्सेप्ट को समझ सकते हैं.
बट दिस पोएट ही वॉज नॉट हैविंग मच इंटरेस्ट इन दैट लेक्चर. इसको पता नहीं क्यों वो लेक्चर बोरिंग लग रहा था. नाउ लेट अस रीड द सेकेंड पार्ट ऑफ द पोएम. हाउ सून अनअकाउंटेबल आई बिकेम टायर्ड एंड सिक. बहुत जल्दी, बिना नोटिस करे, बिना ऑब्जर्व करे, ये बहुत ज़्यादा थक गया उस लेक्चर में और इसको ऐसे लगने लगा कि जैसे बीमार हो गया हो. टिल राइजिंग एंड ग्लाइडिंग आउट आई वॉन्डर्ड ऑफ बाय माई सेल्फ. और फिर इसने चुपके से मौका देखा, ये वहाँ से उठा और ग्लाइड आउट हो गया. मीन्स बहुत हल्के से, धीरे से उस लेक्चर रूम से ये बाहर चला गया. एंड ही वॉन्डर्ड ऑफ बाय माई सेल्फ. वॉन्डर्ड मतलब घूमना, बिना किसी एम के घूमना, बिना किसी लक्ष्य के घूमना. वो बाहर ऐसे ही घूमने लगा, लेक्चर रूम के बाहर खुले आसमान के नीचे वो वहाँ पर घूमने लगा. इन द मिस्टिकल मॉइस्ट नाइट एयर एंड फ्रॉम टाइम टू टाइम लुक्ड अप इन परफेक्ट साइलेंस एट द स्टार्स. और वो उस मिस्टिकल मॉइस्ट नाइट एयर में, रात हो चुकी थी, रात की जैसे ठंडी ठंडी हवा चलती है, तो ऐसे ही ठंडी सी, मिस्टिकल मीन्स थोड़ी डिफरेंट सी, थोड़ी अजीब हवा चल रही थी धीरे धीरे फ्रॉम टाइम टू टाइम, कुछ समय के बाद. लुक्ड अप इन परफेक्ट साइलेंस एट द स्टार्स. और फिर ये जैसे जैसे हवा चल रही थी, कुछ समय के बाद ये ऊपर देखता है स्टार्स की तरफ और बिल्कुल परफेक्ट साइलेंट होकर देखता है. मीन्स ही डजंट स्पीक एनीथिंग एंड ही जस्ट ऑब्जर्व द ब्यूटी ऑफ द स्टार्स, ऑब्जर्व द ब्यूटी ऑफ द नाइट स्काई. अब यहाँ पर ये बिल्कुल एब्रप्ट एंडिंग है इस पोएम की, बहुत अलग एंडिंग है. कहाँ वो एक लेक्चर रूम में बैठा था और लोग उस एस्ट्रोनॉमर की बहुत ज़्यादा तारीफ़ कर रहे थे, उसकी कैलकुलेशंस की बहुत तारीफ़ कर रहे थे, उसके लेक्चर देने के स्टाइल की बहुत तारीफ़ कर रहे थे. अब ये उस जगह से बहुत ज़्यादा बोर हो गया था, इसको ऐसा लगा कि ये बहुत थक चुका है और ये वहाँ से उठा और बाहर आ गया. और बाहर आने के बाद इसने सिर्फ नाइट एयर को एंजॉय करा और ऊपर स्टार्स को देखकर उनकी ब्यूटी को एडमायर किया. तो इसका मतलब ये है कि हमें जो नेचुरल चीज़ें होती हैं उनकी नेचुरल ब्यूटी को भी हमें समझना चाहिए. इट्स सिर्फ ऐसा नहीं है कि हर चीज़ को हम साइंटिफिकली देखें. ये पोएट था तो इसका इतना साइंटिफिक माइंड नहीं होगा, मे बी ये नेचुरल ब्यूटी की तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट होता होगा या लिटरेरी स्किल्स पर ज़्यादा अट्रैक्ट होता होगा. तो दैट्स वाई he just admired the beauty of the night sky, the beauty of the stars, and he did not have any interest in the lecture the astronomer was giving and the other peoples who were admiring his lecture. तो हमें नेचुरल चीज़ों की ब्यूटी को समझना चाहिए, हर चीज़ को साइंटिफिकली ना देखकर उसको हमें दूसरे पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखना चाहिए. आई एम नॉट सेइंग कि हर चीज़ साइंटिफिकली मत देखो, साइंटिफिकली भी आप देखो, लेकिन उसकी नेचुरल ब्यूटी को भी हमें नहीं छोड़ना चाहिए, हमें उसको भी समझना चाहिए. सो दिस वॉज ऑल इन द पोएम. आई होप यू हैव अंडरस्टूड. अगर आपको पोएम में किसी भी लाइन में कोई डाउट है तो यू कैन आस्क मी. आई एम ऑलवेज हैप्पी टू आंसर योर डाउट्स. Thank you so much for watching the video, and if you have liked, press the like button and do subscribe to the channel if not yet subscribed. Thank you so much for watching.